Hello everyone, how are you all? Hello, sir. I'm fine. Hello, sir. I'm fine. And what about? I'm also Sir, fine. and what about you? I'm also fine, thank you. In this session, we are going to study English subject. So let me open the book first so that we can start Yes, sir. session. But in our last session, we completed the speaking junction of your book from chapter number 5. Okay. Yes. In our last session, we studied some of the phrases that is used for suggesting or advice or to give advice to anybody. Okay. Yes, sir. Thereafter, we are supposed to have a listening junction. In listening junction, I would be telling some of the sentences. There you all need to identify the question tag. Not only the identify, even I would be telling some sentences. You all need to tell the question tag for that kind of sentence. So for this, you all should know about the question tag. So how many have heard about the question tag? How many have already studied? Yeah, how many know that what is question tag and how it is being used? How many know? Can you show me your hand first? How many do not know? How many don't know? Show their hand. Who do? How many do not know about the question tag? Question tag के बारे में कितने लोग नहीं जानते? Show me your hand. Raise your hand. Many students do not know about the question tag. Okay, no issue. Down your hands, beta. Down your hands. The question tag looks like a question, but actually it is not a question. It is used to. It is used so that the conversation can be open. So what I will do, I will make a recorded video on the question tag where I will explain that what is question tag. What is question tag? Not I will make a video. I will try to make you understand within this session. So let us talk about the question tag. So what is the question tag? To learn about the question tag, what you need to do? First of all, you all need to read this one. There is a child one. There is a child that she or he is telling, the child is telling what the child is speaking. Anushka Yadav, can you read this one? Child 1. The Pied Piper was a very charming man, wasn't he? एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट है ये. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड वन. चाइल्ड वन क्या कहता है, कैसे बोलता है? द पाइड पाइपर वॉज अ वेरी चार्मिंग मैन. वॉज नॉट ही? एंड देर आफ्टर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. द पाइड पाइपर वॉज अ वेरी चार्मिंग मैन. जो पाइड पाइपर था, दैट वॉज अ वेरी चार्मिंग मैन, बहुत ही चार्मिंग मैन था. वॉज नॉट ही? वॉज नॉट ही? Thereafter question mark. Was not he? Actually, this is not a question. But आपको क्या लगता है? Was not he का मतलब क्या हुआ? Was not he का मतलब क्या हुआ? Who can tell? Whoever is able to understand, they can tell. अनुष्का, आस्था, कोई भी बताइए. Yes. क्या वह नहीं था? Yes. Was not he? क्या वो नहीं था? अगर मैं आपसे बोलूं, this chapter, the story, whatever you have learned in this chapter, was a very interesting. Was not this? Was not it? The story what you learned in this chapter was very interesting. Was not it? Was not it मतलब क्या ऐसा नहीं है था? तो आप क्या बोलेंगे? Yes या no? आपको बोलना तो पड़ेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. That means Yes, sir. for this we are inviting anybody to speak something. That means अगर सिर्फ यहीं पे बोल दिया जाता, यहीं पे अगर फिनिश कर दिया जाता, द पाइड पाइपर वाज अ वेरी चार्मिंग मैन, तो क्या होता? पाइड पाइपर एक चार्मिंग मैन था, इतना कह के काम खत्म हो जाता.
देयर वाज नो नीड कि हाँ समथिंग समवन शुड बी स्पीक समथिंग, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं था कोई कुछ बोले या ना बोले। बट वाज नॉट ही, क्या ऐसा नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या ऐसा नहीं था? तो यानी इसका आंसर किसी को देना पड़ेगा। द कन्वर्सेशन इज ओपन, जो कन्वर्सेशन जो बातचीत था वो एंड नहीं हुआ, दिस इट इज इन ओपन कंडीशन। तभी क्या होता है? चाइल्ड टू, चाइल्ड टू, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड टू? आस्था मौर्य, रीड दिस वन। Oh, yes. He was all I wanted was for him to keep playing his flute. ओके, जब चाइल्ड वन ने ये बात कही, जब ये स्टेटमेंट दिया, द पाइट पाइपर वाज अ वेरी चार्मिंग मैन, वाज नॉट ही? इस इन रिस्पॉन्स चाइल्ड टू क्या बोलता है? ओ यस ही वाज, ओ यस हाँ बिल्कुल ही वाज, वह था, ही वाज वह था, ओ यस ही वाज हाँ हाँ बिल्कुल वो था, वो था क्या था? चार्मिंग मैन था। अब वो चार्मिंग मैन नहीं बोला, वो बोला था वाज नॉट ही, क्या ऐसा नहीं था? तो इसके जवाब में क्या बोलेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ वो था, दैट इज ए कंप्लीट। इसके बाद भी कुछ और बोला चाइल्ड टू ने, अगर आप इतना ही भी बोल देते दैट वाज द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। ओ यस ही वाज, ऑल आई वांटेड वाज फॉर हिम टू कीप प्लेइंग हिज फ्लूट। हम सभी ये चाहते थे कि वो अपना फ्लूट, अपना बांसुरी बजाता रहे कंटिन्यूसली, ऐसा ही था ना? What you all need to observe, this is the, there is a sentence what was spoken by the child one, there are few words that is in bold format, bold format मतलब गाढ़ा है, थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक दिख रहा है, was not he and was दोनों है, was और was not he इन दोनों को ध्यान से देखिए, इसी से रिलेटेड आपको मैं कुछ समझाने वाला हूं। The Pied Piper was a very charming man. That means the Pied Piper was a charming man. ये past tense की बात कर रहा है। जब past tense की बात हो तो जो ये टैग है, this is a question tag actually. ये टैग भी आपका past format में ही होगा, ये present format में नहीं होगा, ना ही future में होगा। You all need to keep remember this one. And this is what we are going to study in this. So let us read. The first sentence ends with a question tag. जो पहला सेंटेंस है वो किससे एंड होता है, उसका समापन कैसे होता है? क्वेश्चन टैग से। एक क्वेश्चन टैग से समापन हो रहा है, उसका अंत हो रहा है। क्वेश्चन टैग्स आर नॉट रियली क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं दैट आर नॉट रियली क्वेश्चंस, वो वास्तव में क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इन अ कन्वर्सेशन they are added at the end of sentence to keep the conversation open. जब कभी कोई बातचीत होती है तो in that conversation they are added, किसको ऐड किया जाता है? क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग को ऐड कर लिया जाता है at the end of sentence, सेंटेंस के सबसे अंत में ऐड कर लिया जाता है to keep conversation open, जिससे बातचीत को ओपन रखा जा सके, बातचीत जारी रह सके। A question tag has two parts. जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसके दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द हेल्पिंग वर्ब और अ लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। एंड अ प्रोनाउन, एंड अ प्रोनाउन। द सेकंड पार्ट इज अ प्रोनाउन। दैट मींस जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें आपका एक हेल्पिंग वर्ब होगा और प्रोनाउन होगा। हेल्पिंग वर्ब निश्चित होगा, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब बिल्कुल होगा। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के साथ साथ में एक प्रोनाउन होगा। ध्यान रखना, प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं। नाउन के लिए जो भी प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं उसको यूज करना पड़ेगा, बट यू हैव टू यूज अ प्रोनाउन। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, move ahead. If the sentence does not have the word not, if the sentence does not have the word not, अगर सेंटेंस में not शब्द नहीं है, ये not शब्द नहीं है, the question tag will take not। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका जो सेंटेंस है उसमें not नहीं है तो क्वेश्चन टैग में not जरूर आएगा। समझ में आया?
फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. Yes, sir. सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है, द पाइट पाइपर वाज अ वेरी चार्मिंग मैन, दिस इज द सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस इज नॉट हैविंग द नॉट. नॉट तो नहीं है ना, अब नॉट नहीं है, इसीलिए जो क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग में देखिए नॉट आया है. वाज नॉट ही इज अ प्रोनाउन, नॉट आप लगेगा, और वाज इज ए हेल्पिंग वर्ब. वाज नॉट ही, wasn't he, wasn't he, wasn't भी बोलते हैं, was not भी बोलते हैं, both are correct. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, the first rule of the question tag, beta, you all need to keep remember the first rule of the question tag. The first rule of the question tag is, if the sentence does not have a not word, अगर sentence में not word नहीं है, then the question tag will be having not. तब question tag में not जरूर होगा. लेकिन if the sentence has the word not, if the sentence has the word not, doesn't नहीं, has, if the sentence has the word not, अगर sentence में not शब्द है, अगर not शब्द है तो क्या होगा, then the question tag will not take not, तब question tag में not नहीं आएगा. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. the third rule, listen carefully. If the sentence, अगर जो sentence है does not have a helping verb, कई बार ऐसा भी होता है many sentence does not having a helping verb, वहां पे helping verb नहीं होता, then राम इज अ क्लीवर बॉय, तो इसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. अगर मैंने बोला राम रन्स फास्ट या राम रीड्स केयरफुली, राम रीड्स केयरफुली मतलब राम रीड्स केयरफुली, राम बहुत ध्यान से पढ़ाई करता है, राम बहुत ध्यान से पढ़ता है. बट राम रीड्स, राम इज अ नाउन, आपका सब्जेक्ट है. रीड्स इज अ वर्ब, एक्शन वर्ड है. केयरफुली ये बता रहा है, ये केयरफुली क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, व्हाट इज दिस? केयरफुली किसको डिफाइन कर रहा है, राम को या फिर रीड को? केयरफुली किसके बारे में बोला जा रहा है, रीड्स के बारे में या राम के बारे में? राम के बारे में. राम केयरफुली, राम के बारे में. बेटा आई एम आस्किंग दैट कि द वर्ड केयरफुली इज मॉडिफाइंग टू व्हिच वर्ड, राम और रीड्स? ये केयरफुली किसके बारे में बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है कि कैसा है, राम को या पढ़ाई को? रीड्स, और आप रीड इज द एक्शन वर्ड वर्ब, तो दैट मीन्स केयरफुल इज एडवर्ब नॉट एडजेक्टिव. अगर नाउन के बारे की क्वालिटी बताए तो दैट इज एडजेक्टिव, बट केयरफुल इज एडवर्ब बिकॉज इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द एक्शन वर्ड, इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो पढ़ाई है वो केयरफुली हो रहा है या फिर वैसे ही कॉमनली, जैसे कई सारे बच्चे अभी यहाँ पे कर रहे हैं, वो क्लास के समय इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग केयरफुली एक्चुअली. कहने का मतलब यह है, देयर आर मेनी सेंटेंस दैट इज नॉट हैविंग द क्वेश्चन, दैट इज नॉट हैविंग द हेल्पिंग वर्ब. राम रीड्स केयरफुली में कोई वर्ब है बट हेल्पिंग वर्ब नहीं है. इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी नहीं है, केवल वर्ब है, अकेले है, दैट इज द मेन वर्ब, वही वर्ब है. कई सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तब क्या करेंगे? इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, देन द टैग टेक्स वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डू. तो जो टैग है, जो क्वेश्चन टैग है, उसमें डू का एक फॉर्म को ही लेगा. समझ में आया? अगर प्रेजेंट है तो डू या डज, अगर पास्ट है तो कौन सा फॉर्म ऑफ डू लेगा? व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू?
Sir, did. Did. Yes, did is the correct one. So अभी ये 3 तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे. You would be getting a 3 types of sentences. कोई सेंटेंस अगर आपको ध्यान ये देना है, पहली बात, या तो सेंटेंस में नॉट होगा या तो नहीं होगा. अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा या नहीं? सर आएगा. अगर ध्यान से सुनिए, you would be having a 2 types of sentence. या तो नॉट होगा या तो नहीं होगा उस सेंटेंस में. अगर सेंटेंस में नॉट है, अगर सेंटेंस में नॉट पहले से ही है, तो क्या क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा या नहीं? No, sir. No, sir. ध्यान देने की बात है, दोनों जगह Yes, sir. नॉट नहीं होगा. अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नहीं होगा. अगर क्वेश्चन टैग में नॉट है तो सेंटेंस में नहीं होगा. समझ में आया? Yes, sir. That means Yes, sir. if your sentence is having the not word, अगर आपके सेंटेंस में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा. लेकिन अगर आपके सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आपके क्वेश्चन टैग में नॉट होगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके पास ऐसा Yes, sir. सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसमें डू का फॉर्म लगेगा. अब नॉट या है लगेगा या नहीं लगेगा? अगर नॉट क्वेश्चन पहले से ही आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं है, नॉट नहीं है और उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो आपको क्वेश्चन टैग में उस हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी डू के फॉर्म के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से नॉट नहीं है. यानी नॉट रहेगा या नहीं रहेगा वो तो आपका पहले सेंटेंस से जो पहले रूल था वो फॉलो होगा हर समय. लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यू हैव टू राइट द फॉर्म ऑफ डू. आप पास्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं, एज पर देयर सिंगुलर और प्लूरल, एज पर द क्वांटिटी ऑफ द, एज पर द नंबर ऑफ द nouns या subjects. So let us have some example. Let us have some more examples. The first sentence, read the first sentence, Rajpal. Ram is a doctor. Is he? बेटा इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ाया नहीं गया है आपको इसके पहले. किसी भी 2 वर्ड्स को मिला करके, यानी स्पेशली अगर नॉट हो तो नॉट और हेल्पिंग वर्ब को मिला करके एक सिंगल एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है. इज नॉट को अलग अलग लिखने के बजाय एक साथ कर दिया गया है. दैट इज इजंट. इजंट आप पढ़ें या इज नॉट पढ़ें, बोथ आर करेक्ट. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, नॉट है ये. इज नॉट ही, isn't he, it is on you. in the speaking थोड़ा सा और फ्लुएंसी लाने के लिए isn't इसको isn't बोल देते हैं, but actually it is not. दीपक सिंह, आप बेटा दीपक सिंह माइक ऑन करिए आप पहले. ऑन योर माइक फर्स्ट. दीपक सिंह. Yes, sir. where you are looking, you are looking behind. आप पीछे देख रहे थे. माइक बंद किया, मैं तुरंत बाहर कर रहा हूं आपको. चलिए आप बाहर लेके बातचीत कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है? अगर आप सभी को पढ़ना होगा तो ध्यान से पढ़िएगा. दीपक सिंह हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास बिकॉज ही वाज नॉट फोकसिंग, ही वाज नॉट रीडिंग केयरफुली. पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, ऐसा ना हो इधर उधर देखें. ध्यान रखिए. राम इज ए डॉक्टर, इज नॉट ही. राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, इज नॉट ही, क्या वो नहीं है? द सेकेंड सेंटेंस, अब राम इज ए डॉक्टर इज नॉट ही में क्या देखेंगे? इज ए लिंकिंग वर्ब. अब इसमें राम इज ए डॉक्टर में अगर हम बोलेंगे राम इज ए डॉक्टर इज ए सेंटेंस. अब इसमें मैं पूछूं राम इज ए डॉक्टर में कौन सा काम हो रहा है? क्या कोई काम हो रहा है? कोई वर्ब है, कोई एक्शन हो रहा है इसमें? No, sir. नहीं No, हो. sir.
जब कोई एक्शन ही नहीं हो रहा तो उसमें कौन सा वर्ब होगा? एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं, क्रिया तो वही है। जब कोई क्रिया हो ही नहीं रही है तो उस क्रिया को आप नहीं लिखेंगे। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए आपको बिना वर्ब के आप आगे नहीं, सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर सकते। यू हैव टू राइट अ वर्ब, दैट इज ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके पिछली क्लासेस में हो सकता है पढ़ाया गया हो। बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट यानी जो करता है, जो करने वाला है। अगर कोई एक्शन हो रहा है या कोई, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आता है। व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? राम। तो राम के बाद तुरंत वर्ब आना चाहिए, तो राम के बाद वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब तो है ही नहीं, कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो क्या किया गया यहाँ पे? एक हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू या डज, हैज या हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कोई एक यूज किया जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. इसके कुछ रूल्स हैं, Yes, ऐसा sir. नहीं कि कोई भी यूज कर लीजिए, इसके भी रूल्स हैं। आपको पता होगा, इज ए सिंगुलर हेल्पिंग, इज ए सिंगुलर, इट इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर नाउन। अगर यहाँ पे राम आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज यूज किया गया। अगर यहाँ पे राम एंड श्याम होता या दो ऐसा प्लूरल वर्ड होता तो इसके लिए आर यूज होता। अगर यहाँ पे आई होता तो एम यूज होता। समझ में आया? तो अभी Yes. हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में डिटेल में अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो बताइएगा, मैं कोई वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आज के टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं, व्हाट वी आर स्टडीइंग राइट नाउ। राम इज अ डॉक्टर, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, मेन एक्शन नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स के मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर सकते। तो यहाँ पे क्या किया? हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया गया। प्रेजेंट टेंस का था तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया। लिंकिंग वर्ब, राम इज अ डॉक्टर, दैट मीन्स कि इज अ लिंकिंग वर्ब। वर्ब की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया? इज, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। वो वर्ब नहीं है, इस वजह से वर्ब की सहायता कर रहा है। दैट इज नोन एज अ लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे आपके पास लिंकिंग वर्ब ये है लेकिन नॉट नहीं है। देयर इज ए हियर इन दिस सेंटेंस इट डज नॉट हैविंग नॉट वर्ड, नॉट शब्द नहीं है इसमें। हेल्पिंग वर्ब ये है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब के साथ के बाद नॉट लगेगा फिर प्रोनाउन। नियम तो यही बताया था ना क्वेश्चन टैग में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इज लगा दिया। सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम टेंस का होना चाहिए। अब आपका दूसरा क्या है? नॉट, इसमें नॉट नहीं था तो यहाँ पे नॉट लगा दिया गया, इज नॉट। लास्ट में हेल्पिंग, लास्ट में इसके बाद क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब राम तो आप नाउन तो लिख नहीं सकते, तो राम के लिए आप क्या, राम की जगह पे आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ही। तो इसलिए ही इज अ प्रोनाउन। तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या हुआ? राम इज अ डॉक्टर के लिए क्वेश्चन टैग क्या हुआ? इज नॉट ही। क्या वो नहीं है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Take another example. She is not coming. She is not coming. आपको पता है is a helping verb and is के साथ not भी लगा है, not है इस पहले सेंटेंस में। She is not coming, तो इसके बाद क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग में not अगर पहले से है तो क्वेश्चन टैग में not होगा या नहीं? No, sir. नहीं होगा। No, sir. क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं है तो देखो है भी नहीं। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया इज, और शी प्रोनाउन था तो उसी प्रोनाउन को ही यूज कर लीजिए। अगर प्रोनाउन के जगह नाउन होता तो नाउन के जगह पे जो भी प्रोनाउन यूज किया जा सकता है वो उसको यूज करना था। लेकिन प्रोनाउन ही है तो उसी प्रोनाउन को यूज कर लीजिए। शी इज नॉट कमिंग, नहीं, शी इज नॉट कमिंग, वो आ नहीं रही है। इज शी, क्या वो आ रही है? शी इज नॉट कमिंग, वो आ नहीं रही है। इज शी, क्वेश्चन टैग क्या है? नाउ लुक टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस। तीसरा एग्जांपल देखिए जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी ईट्स
चॉकलेट। अब यहाँ पे कोई काम हो रहा है? देखिए वन मोर थिंग बेटा, इन द सेकंड सेंटेंस लुक टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस, शी इज नॉट कमिंग, क्या इसमें कोई काम हो रहा है? इज देयर एनी एक्शन वर्ड? कुछ एक्शन हो रहा है इसमें? Yes, sir. कौन सा एक्शन हो रहा है? Yes. Sir, coming. कमिंग, Coming. दैट मींस कि दिस इज द Coming. वर्ब। एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड यानी वर्ब है, यहाँ पे पहले से वर्ब है। बट इस वर्ब में आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, बिकॉज टेंसेस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल, आप कंटिन्यूटी किसी भी टेंस में आप किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड यूज करना पड़ता है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। यानी पास्ट टेंस में भी कमिंग आप बोलेंगे वह जा रहा था या वह जा रही थी, नहीं वह कम में आना, वह आ रही है, वह आ रही थी, वह आ रही होगी, 3 तरह के सेंटेंस हो गए ना। वह आ रही है, आ रही यानी कंटिन्यूटी दिखाता है, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? आपको ग्रामर स्टेशन में है, आपके इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। यानी जो आपका कम में आईएनजी के फॉर्म एंड कम के साथ आईएनजी, जो मेन एक्शन वर्ड है उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कम का प्रेजेंट पार्टिसिपल है कमिंग। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहे जिस टेंस के लिए हो आपको यूज करना पड़ेगा। पास्ट टेंस होता तो भी आप कहते शी वाज नॉट कमिंग, वहां पे भी कमिंग ही आप लिखते, शी विल बी नॉट कमिंग, वह नहीं जा रही होगी, वह नहीं आ रही होगी। तो दैट मीन्स कि कमिंग वर्ड से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। इस वजह से अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कही जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे इज लगा दिया गया, इससे ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। किसी भी सेंटेंस को कौन से समय की, किस समय की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की, तो इससे ये पता चल जा रहा है ये प्रेजेंट की बात हो रही है। समझ में आया? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, शी इज नॉट कमिंग। तो यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब तो था, लेकिन इस मेन वर्ब से आपका टेंस नहीं, टेंस भी पता चलना चाहिए। तो जो टेंस के रूल्स हैं उस रूल में ये फिट नहीं हो रहा था, इससे नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब की सहायता ली गई। हेल्पिंग वर्ब का काम ही है हेल्प करना, तो ये इस वर्ब के हेल्प करने आया। कौन आया? इज। तो इज से ये पता चला कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस का है, और कमिंग से पता चलता है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, दैट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? Yes, sir. चलो आप लोग को टेंसेस भी पढ़ाएंगे बहुत जल्दी बेटा, आप लोग अपना सिलेबस आपका कंप्लीट हो, जब समय बचेगा तो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग द कॉमन रूल्स ऑफ ऑल द टेंसेस। जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ग्रामर्स के रूल्स, मैं इसको आपको अलग से एक एक टॉपिक्स में वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप लोग उसको देखिएगा, आप सभी के लिए अच्छे रहेंगे। शी इज नॉट कमिंग, इज शी, यानी यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब था इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन टैग में। बट व्हाट अबाउट द इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, शी ईट्स चॉकलेट, शी ईट्स चॉकलेट। अब यहाँ पे कौन सा कोई एक्शन हो रहा है? कौन सा एक्शन? व्हिच एक्शन इज गोइंग ऑन इन दिस सेंटेंस? Sir, eats. खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, दैट मीन्स ईट इज अ वर्ब, ईट इज अ एक्शन वर्ड। खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। अब इस खाने का काम हो रहा है ये आपका, अब वर्ब में भी प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, पास्ट फॉर्म भी होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है कंटिन्यूटी शो करने के लिए, और वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो प्रेजेंट, ये बताने के लिए कि जो ये काम हो रहा है ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट की में हो रहा है। अगर आप किसी भी वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, किसी भी वर्ब का आप पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो दैट मीन्स कि वो एक्शन आपका पास्ट में हो रहा है, यानी हो चुका है वो एक्शन। समझ में आया? Yes, sir. अब इससे तो ये दिक्कत नहीं होगी, अब इससे तो ये दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा टेंस है। तो ऐसे में क्या हुआ, इसको हेल्पिंग वर्ब की तो जरूरत है नहीं टेंस बताने के लिए। शी ईट्स चॉकलेट, ये कौन सा टेंस है?
दिस इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ईट, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी ईट्स चॉकलेट, वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब इसमें एक और बात हो गया, जो आप आज पढ़ रहे हैं अबाउट द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए एक परेशानी हो गई। क्वेश्चन टैग का रूल है कि आप उसमें हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद प्रोनाउन लगाएंगे। आप बताइए इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? रूल्स तो मैं बता चुका हूं ना। वी वुड बी डूइंग, वी वुड बी यूजिंग डू फॉर्म ऑफ दैट, डू फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डू के फॉर्म को यूज करेंगे। अब आपको पता है कि दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में डू या डज होगा। अब डू कहां पे यूज करेंगे, डज कहां पे यूज करेंगे? अगर आपका ये सिंगुलर है तो डज, अगर प्लूरल है तो डू। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो शी आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज लगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब होता तो, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो वही का वही हेल्पिंग वर्ब चला जाता। अभी है नहीं, तो क्या कर रहे हैं कि शी को देखते हुए उसी सेम टेंस का हम यहाँ पे एक डू फॉर्म का ले लेते हैं। तो शी के लिए डज यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, तो डज हमने यूज किया। डज के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, वैसे जैसे अभी तक फॉलो। डज नॉट, अब शी प्रोनाउन है तो शी को यहाँ पे डज नॉट शी, तो दिस इज द क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग कैसे आपको यूज करना है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? कितने लोगों को समझ में आ गया? ओनली 5 minutes इज रिमेनिंग। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ सेंटेंस बोलूंगा, उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप सभी को बोलना है, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? अगर आपको क्वेश्चन टैग समझ में आ गया तो you all can speak the question tag. The first sentence what I'm going to tell you all, let me, already I was written some of the sentence, so let me open that please. Okay, Hamelin is in Germany. The first sentence is, आपके बुक से, आपकी स्टोरी से खोज के लिखा है, Hamelin is in Germany. इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? किसी को भी आता है बताइए। यस अनुष्का। Sir, isn't it? Is, Hamelin is in Germany. Hamelin is in Germany, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इज लिख दो। नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा दो, इज नॉट। अब Hamelin इज अ नाउन, Hamelin की जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं आप? ही, शी, दे, इट, क्या यूज करेंगे? Hamelin इज अ नेम ऑफ द, He. दैट मीन्स कि अनुष्का, ही क्यों होगा बेटा? ही तो लड़के के की जगह पे यूज किया जाता है। तो Hamelin इज अ नेम ऑफ द प्लेस, और उसका प्रोनाउन क्या होगा उसकी जगह पे? It. That means कि अनुष्का is correct. अनुष्का is absolutely correct. Hamelin is in Germany. Is not it? Yes, is not it is the correct question tag. Very good, Anushka. Very good, beta. The next question. Listen carefully. Only 3 minutes is remaining. The piper was angry. The piper was angry. What is the question tag? तुरंत बताइए जिसको आता है। अनुष्का आप थोड़ा वेट करो बेटा, अनुष्का वेट करिए, बाकी जिसको भी आता है बताइए। The piper was angry. The piper is not angry. The piper is not angry. Piper was angry को आप नेगेटिव में बदल दिया। आप क्वेश्चन टैग क्या है यही नहीं जान पाई अभी तक। क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या होता है? क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर उसके बाद प्रोनाउन। केवल 3 शब्द होंगे। Only 3 words would be there in the question tag. Only 3 words are there. 3 वर्ड्स होंगे जिसमें पहला आपका हेल्पिंग वर्ब ही होगा। पहला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। दूसरा क्या होगा? नॉट होगा। तीसरा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। The piper was angry. What is the question tag for this sentence? Doesn't he? Okay, Asa Maurya is telling doesn't he. बेटा, the piper was angry में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
जो आप डेज यूज कर रही हो? यस शिवानी Sir, है। बताइए बेटा, शिवान्या जल्दी से। Was not he? Yes, Shivanya is correct. The piper was angry. Piper was angry में was आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए was सबसे पहले है, वही सेम हेल्पिंग वर्ब की यूज करिए was। अब इसमें not नहीं है तो not आपको लगाना पड़ेगा, not तो पहले सेंटेंस में है नहीं, तो was not। अब द पाइपर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? he, was not he, was not he is the correct, was not is the correct one. Okay, Yes, sir. the third sentence, listen carefully. The mayor was an honest man. The mayor was an honest man. जल्दी से बताइए, the mayor was an honest man. शिवान्या के अलावा शिवान्या और हाँ विनय बताइए बेटा। The maven was बेटा द मेयर, ये क्वेश्चन आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहिए। आस्था मौर्य बताइए। Wasn't he? यस, द मेयर वाज एन ऑनेस्ट, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए वाज ही पहले होगा, और इसमें नॉट नहीं है इसलिए नॉट होगा। वाज नॉट, द मेयर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। वाज नॉट ही, वाज नॉट ही इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर दिस वन। उसके बाद ध्यान से सुनिए, आस्था आप शांत रहिएगा, आप भी, बाकी लोग बताइएगा। Yes. द टाउन नहीं, चलो ध्यान से दूसरा सुनिए। अ बॉय वाज लेफ्ट बिहाइंड इन द फॉरेस्ट। अ बॉय वाज लेफ्ट बिहाइंड इन द फॉरेस्ट। A boy was left. A boy was left in the forest. शिवांगी त्रिपाठी जल्दी से। Was not. Was not क्या होगा? A boy के लिए क्या होगा? जल्दी से पूरा बोलिए, only 2 seconds are remaining. Was not he is the correct answer. The was not he is the correct tag for this one. बेटा आपको फिलहाल क्वेश्चन टैग के बारे में जो आज का वीडियो है वो जरूर एक बार देखिएगा। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा रिटन फॉर्मेट में, आप उसको कॉपी में लिखिएगा और उसका क्वेश्चन टैग लिख करके मुझे भेजिएगा। दैट इज द वर्क फॉर टुडे। मैं अभी आपको जो भी